if you think the statements are wrong, then obviously do not like judge him in that particular manner. क्योंकि अगर किसी भी तरह का कोई भी काम हुआ होगा तो निश्चित तौर पे दोनों लोगों के सहमति से हुआ। I wasn't really happy when he said that. It's very sexist, kind of misogynist. What's your reaction to this entire Hardik Pandya thing which happened? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब आप इतना कूल नहीं हो सकते हो। I really don't think that it was any way offending or any way offensive to all the women out there, because it was a very general statement by him. I was ashamed. I was like, come on, yeah, these are the men of power. आपको मतलब बहुत फॉलोअर्स हैं आपके, आपको बहुत फॉलो करते हैं। अच्छा। तो आप मतलब ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हो कि आपके फॉलोअर्स या आपके मतलब चाहने वाले उसी राह पे चल पड़े। You take a shower in your washroom without clothes. But you don't post your videos of that on FB that you are doing so every day and this is the style and the way you do it, right? There is a difference between human being and animals. I think it's just being publicized a lot. Okay. It shouldn't be publicized. It's being hyped up. It's hyped up. Yeah. Okay. The comments he made were very not suitable for the society. But then I also feel that cricket, he is known for playing cricket, right? He's known for not known for being a great human. उनके मन में जो बात आई उन्होंने सच्चे मन से कह दिया। बहुत लोग कहते नहीं हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसके लिए इतना इशू बनाना चाहिए। First, our grown-up people now, we are pretty mature now, and that happened with consent. And then, what's the problem and what's the bashing about all? Because he's a public figure, and I think the responsibility lies on all the public figures. It was really unfortunate whatever he said. Being a celebrity, it was really not acceptable whatever he said. I wasn't really happy when he said that. It's very sexist, kind of misogynistic. So cricket and social issues should be kept aside, and the fact that he's banned from cricket is bad, but then him being condemned for his remarks and him being condemned for his comments is very legit and should be that. Because some person who's a celebrity, he's paying a price for talking in a way that people you would usually talk in a public place or with their friends. So he's just paying the price for saying it. Obviously what he said is not right. Problem is he's popular. Exactly. The problem is that he's popular and people have got a target and they're... on media things should be measured. Okay. Words should be used as a measure. In layer manner, in friends we do it. Okay. Yeah, but in media you should have measure the words, nothing else. I think team से नहीं निकलना चाहिए था। रखना चाहिए था because his game will not affect his character, right? How he plays the game, that's important. Okay. Yeah, he just went on with the flow. He was not expecting what. भाई बह गया। भाई बह गया, वो सोच ही नहीं रहा था क्या बोलना है। पर्सनल कमेंट्स था, नो डाउट थोड़ा सा एट अपर लेवल पे था वो चीज़, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक बीसीसीआई को उतना हार्श डिसीजन लेना चाहिए था उसे उस सीरीज से बैन करने के लिए। ठीक है, खुला दिल है जो कह दिया। अब बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करके भी कुछ कहते नहीं हैं। सही था, ठीक था। अरे उसने जो भी कह दिया अपने वे में कहा, जो भी कहा, बट द थिंग इज कि he is a national figure, right? He represents our country, and that was wrong because lot of people idolize him, lot of cricketers idolize him. गलत है। मतलब यही सेम चीज़ अगर कोई लड़की बोली होती तो उसको मतलब बोला जाता कि वाओ शी इज सो कूल, शी इज सो ब्रेव, बोल्ड। बट अब मतलब जस्ट बिकॉज ही इज अ बॉय तो उसको बैश किया जा रहा है। मेरा सवाल है, मान लो ये इंटरव्यू में ये हार्दिक पांड्या ने कहा, मान लो इसकी जगह किसी फीमेल सेलिब्रिटी ने ये बातें कही होती, उसने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करी होती, जेन्युइनली दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो भाई, दिल पे हाथ रख के बताओ क्या सच में यही आउटबर्स्ट होता? नहीं, ये नहीं होता। It's like feminist वो आ जाता, like the feminist, the मोर्चा, महिला मोर्चा, exactly वो आ जाता, like why we have to interfere, we should be like modern. अगर आदमी ने कह दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर वही चीज़ एक औरत कहती तो बोलते वुमेन एम्पावरमेंट। तब और तरह का आउटबर्स्ट होता, she would have been slut shamed. तो भी बैनी करते 4-5 महीने के लिए और क्या, अगर इनके से वो स्पोर्ट्स बिलोंग करती, कुछ नहीं होता, लोग हंसते, लोग खुश होते, लोग चार बातें बोलते, वाह कितनी बोल्ड है, कितनी स्ट्रांग है। लोग कहते हैं कि लड़की बड़ी बोल्ड है। Vidya Balan said it in one of the episodes on Coffee with Karan. It said when she came out with Farhan Akhtar, women like it and they do it as much as men do. And she was slut shamed for it. So लड़का क्रॉस करे वो लिमिट या लड़की क्रॉस करे, बात एक ही है। हाँ, तब शायद इतना बड़ा रिएक्शन नहीं होता, लड़की है करने दो, ऐसा एक ओपिनियन रहते हैं। Exactly. Who are you to judge me? I can sleep with any guys I want. घोषित कर दिया जाता है कि ये तो बड़ी बेकार लड़की है, बिकॉज हम लोग की वही इंडियन समाज जैसा है वैसे।
Might be she. I think more than that. More than that. More than that. The kind of society we are living in, it would be difficult for her to survive. नहीं, फिर मुझे लगता है कि उसको प्रेज करते हैं कि ओ कितनी बोल्ड है ये. तो इट्स ओपन माइंड. आजकल तो दुनिया ऐसी हो गई कि लड़कियां अगर ज़्यादा ओपन हो रही है तो अच्छा है. दैट्स अ गुड सेंस. उनको तो अच्छा लगता है कि लड़कियां ओपन हो रही, लेकिन लड़के अगर उस सेंस में बोल रहे तो वो गलत है, तो वल्गर हो जाता है. हाँ बिल्कुल वल्गर हो जाता है. ऐसे कम से कम सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें लड़कियां ओपन होकर अपनी सारी बातों को कही भी हैं और जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का भी नाम है, सेलिब्रिटी ने भी कहा है. तो ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं है. हाँ, निश्चित तौर पे ग्रामीण परिवेश के विलेज एरियाज में की अगर लड़कियों में से किसी एक ने कहा होता तो बवाल तय था. It would have more hype kind of thing. More hype kind of thing, according to you. Yeah. सेम होता क्योंकि सेम उनके पे वही चीज़ें लागू होती है, बट कि थोड़ा और ज़्यादा होता है. ठीक है, आउटरीच तो होता. जो भी करेंगे इंडिया में, वी आर आर्गुमेंटेटिव बाय नेचर. Okay. So outrage is going to be there. Feminism is it's a huge topic, right? And so I feel it's about women and men should be treated the same. So if a woman would have said that, I feel she should receive the same backlash that Hardik. I mean, I don't think there should be a difference in that for me personally. KL Rahul की क्या गलती थी? He supported the wrong person. बेचारे वो हार्दिक पांड्या के साथ रह गए. और घूम ले पांड्या के साथ, और घूम ले. KL राहुल तो बेमतलब का पिस्सा है यार. मतलब साले से रन बन्नी ने भाई से मारे. कुछ नहीं. Really bad for that person. Yeah, I really felt bad for that person, to be honest. But then if you're the partner of a crime, then you're equally a criminal. You should be very careful who you choose to be friends with. दोस्त अपनी संगत सुधारो. KL राहुल के पापा कह रहे होंगे अपनी संगत सुधारो. उसने अपना हैंडल अच्छा किया, लेकिन क्योंकि उसने बोला द गर्ल विल डिसाइड, ऐसा एक लाइन बोला था, तो आई डिडंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद हिम. वो साथ में होता ना, वो भी पिस जाता है. मुझे लगता है KL राहुल फंस गया है उन लोगों में. बेचारा ना रन में लगे रे भाई से. रन नहीं, एक साथ जब होता है ना, जब भगवान लेता है ना तो पूरे लगा देता है. तो अलाइंड वे में लग रही है उनकी. उनको भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए. एटलीस्ट ही कुड हैव ट्राइड टू स्टॉप हिम और लाइक ही कुड हैव मेड सम सेंसिबल. उसने बस हाँ में हाँ करता गया. हाँ भाई हाँ, क्या बात खोली बस. उसकी पोली खोली और ज्यादा कुछ नहीं किया. बेचारे की कोई गलती नहीं थी. वो तो बोलते हैं बलि का बकरा होता है बीच में. बलि का बकरा. हाँ. कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता. पोपट हो गया. पोपट हो गया. व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द पीपल जो वीडियो देखेंगे? बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट हो रहा है हार्दिक पांड्या के लिए. व्हाट डू यू वांट टू से टू एवरीवन? मेरे हिसाब से कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा. क्योंकि अगर किसी भी तरह का कोई भी काम हुआ होगा तो निश्चित तौर पे दोनों लोगों के सहमति से हुआ. हाँ, रजामंदी से हुआ होगा. हाँ, तो इसमें इस पे पांड्या जी को सजा देने की क्या जरूरत है? आप लोग उस महिला मित्रों को भी ढूंढिए, उनको भी सजा दीजिए. गाइस, ट्राई टू फॉलो योरसेल्फ. दूसरों को फॉलो करते रहोगे, अपनी आइडेंटिटी खो दोगे. अपनी ओरिजिनलिटी को फॉलो करके बी योरसेल्फ. You should treat the other person the way you want to be treated. अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो सामने वाला बंदा अपने जगह पे सही हो सकता है. You can't really judge that person for having a particular kind of an opinion about anything. Bashing and all is a different thing. Let people live and choose their own lives and all. ठीक है, they are cricketers and everything, and they should have not said what they said. But keep your nose to yourself. Don't poke your nose into others' business. Let BCCI decide. They are, I think, a body of authority and brains. They'll decide. It's okay. Chill. Please be sensible to people. Don't judge people just because they are a celebrity. Okay, people are behaving like this around you. I want to add something. Just understand, celebrity कहीं आसमान से नहीं आते, वो हम में से ही होते हैं भाई. I want to say that let him live his life his own way, and we are hypocrites. That's true. We are. कोई सेलिब्रिटी भी हो, वो कुछ भी बोले, वो अच्छा बोले तो वो मरते हैं, वो बुरा बोले तो वो मरते हैं. वो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करे तो उनको बोला जाता है कि इतना गलत कर, ना शेयर करे तो आप शेयर क्यों नहीं कर रहे, आप में कुछ प्रॉब्लम है. आमतौर पर अमूमन इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातों को बोलने से बचना चाहिए. लेकिन अगर उन्होंने बोल भी दिया तो इसको इतना शोर शराबा हो हल्ला न करना चाहिए. आप लोग को देख रहे तो अपना थोड़ा वर्ड्स का मतलब सही तरीके से यूज़ करें एंड यूज़ इट एज अ फॉर गुड कॉज, फॉर सोशल पर्पस एंड एवरीथिंग. दिखावे के लिए नहीं, पर सच में ग्राउंड लेवल पे और अच्छे कॉजेस के लिए काम करें. If you think the statements are wrong, then obviously do not judge him in that particular manner so that he gets banned in everything. Right. So I think as a society we have to evolve. हमारी सोसाइटी अनइवन देखती है. मतलब एक को देखती है कि हाँ ये लड़की है तो इसको स्ट्रांग होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, और अगर वही लड़का है तो वो गलत ये बोल रहा है, गलत है. और अगर ये सेम काम लड़की करती तो हम इतना हल्ला नहीं करते.
तो ये हम हिपोक्रेट है। हम हिपोक्रेट हैं।